अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 के यूनिट 1 डॉथी मीट्स द स्केयरक्रो की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन कर चुके हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो आए अब हम करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। ये आपका चैप्टर था और ये है इसकी एक्सरसाइज। What is the road made of? The road is made of yellow bricks. What is the scarecrow? नहीं, ये है. What is Dorothy's pet called and what type of creature is he? Dorothy's pet is Toto. It is a dog. Why is the scarecrow in the field? It was there to scare the birds and stop them from eating the ripe corn. What does Dorothy do to help the scarecrow? Dorothy helps the scarecrow to get down from the pole on which he was stuck. What does the scarecrow do to help Dorothy? Scarecrow helped Dorothy by carrying her basket. और क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिड द स्केयरक्रो वांट टू आस्क द ग्रेट ऑज फॉर? स्केयरक्रो वांट्स टू आस्क द ग्रेट ऑज फॉर अ ब्रेन। अब आ जाते हैं हम इसके इन क्वेश्चंस पे। हाउ डू वी नो द स्केयरक्रो इज काइंड एंड पोलाइट? We know the scarecrow is kind and polite because he carries Dorothy's basket for her. He greets Dorothy when he sees her and he talks her in a polite manner. Can you explain why the scarecrow is afraid of a lighted match? Because the scarecrow is afraid of a lighted match because he is made of straw and straw burns easily. The scarecrow says that he does not have a brain. Is it possible to walk and talk without a brain? It is not possible to walk and talk without a brain, but a scarecrow has a brain that helps him to walk and talk, but not to think or know the things easily. अब हम इस पे आते हैं. Who is the little girl? Dorothy is the little girl. To whom was the girl saying this? She was saying this to Scarecrow. Why does she feel sorry for him? She feels sorry for him because she does not have a brain. What happened next? She offered the scarecrow to come with her to the great wizard of Oz and ask him for a brain. अब हम आते हैं इसके पेज 7 पर. Which of these sentences are true or false? The scarecrow never gets tired. True. The scarecrow is frightened of the farmer. No. He is frightened from the lighted match. तो ये हो गया false. The great Oz lives in the diamond city. No. He lives in emerald city. False हो गया ये भी. Dorothy has a dog called Coco. No, Toto. His name was Toto. तो ये हो गया false. The scarecrow is wearing a blue hat. True. अब हम आते हैं. The letters are not in the correct order. तो इनको हमने correct order में लिखना है. कोशिश करेंगे ये जैसे कैपिटल लेटर्स में है तो इसका आंसर जब आप सही करके लिखेंगे तो उसको भी कैपिटल लेटर में ही लिखें. तो ये लफ्ज़ जो है बनता है STUFFED स्टफ्ड. ये बनता है स्केयरक्रो SCARECROW. एमराल्ड EMERALD.
ये बनता है द ग्रेट ऑज, THE द, और GREAT ग्रेट, OZ ऑज। कॉर्नफील्ड, CORN कॉर्न, FIELD कॉर्नफील्ड। और ये बनता है ग्रेटफुली, GRATEFULLY। तो अब हम आते हैं इस पे, विच वर्ड इन ईच लिस्ट इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली। इनमें से कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग्स, एक ऐसा वर्ड है जो रॉन्ग स्पेलिंग के साथ है, तो देखते हैं वो कौन सा है। फ्रेंडली, फील्ड, फ्रीडम, फ्रेशली, फ्राइड। फ्राइड इज़ रॉन्ग। FRIED इसका सही स्पेलिंग। ये है एस्केप, डिस्कवर्ड, इंस्पेक्ट, एस्क्यू, एक्सीडेंट, दिस इज रॉन्ग। स्पेलिंग है EXCUSE। डिसाइडेड, डिसमेड, डिस्प्लेड, डिस्ट्रॉयड, डिजर्टेड। तो इसमें से ये है रॉन्ग, DECIDED इसका सही स्पेलिंग है। और ये है क्विकली, क्वाइटली, क्वीन, क्वेश्चन, दिस इज रॉन्ग। राइट आंसर इज दिस QUIETLY। ओके, अब हम आते हैं ये, ट्राई टू फाइंड दिस वर्ड्स इन द स्टोरी। तो ये सेंटेंसेस लिख के आपको क्लूज दिए गए हैं, आपने ये देखना है कि ये किस वर्ड के बारे में ये क्लू है, और ये लेसन के अंदर से हैं। दिस कीप्स एन एरिया क्लोज्ड ऑफ आर प्रोटेक्टेड, यूजुअली मेड ऑफ वुड। ये है फेंस। वैसे ये पेरेंट्स जो हैं ये बच्चे को खुद करवाएं, ये मैं आपकी सहूलत के लिए बता रही हूँ। इसको ऐसे छुपा के बच्चे से पूछें प्रैक्टिस के लिए, तो फिर बच्चा आपको बताएगा आंसर ढूंढ के। सम टाइम वॉन on the head to keep one warm, or to keep the sun off. This is head. A thin piece of metal with a sharp point at one end and a round head at the other. Pin. A container used for holding things, often made of interwoven strips of wire or cane. This is basket. These rodents look like large mice with long tails and pointed snouts. तो ये है rat. The organ of the body in the skull, it controls movements, sensations and thoughts. This is brain. आए अब करते हैं पेज 8. Write these sentences in your notebook in the correct order. ये आगे पीछे शफल करके सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इस पिक्चर से मतलब ये जो टैक्सी बनी हुई है इसी से रिलेटेड है, तो मैं इसको आपको रीअरेंज करके बता देती हूँ। He was standing on a bench waiting for a bus. Number 2 पे आएगा the bus did not come. Number 3 पे आएगा the taxi went off down the road. A taxi arrived and the man got in. ये number 4 है। और number 5 है the taxi arrived at the house. और number 6 the driver asked him for some money. और last है the man took a note out from his pocket and gave it to him. अब इसको पढ़ें। Now underline all the nouns in the sentences that you just wrote down. तो आपने ये जो रीअरेंज करके सारे सेंटेंसेस लिखे हैं, फिर उसी तरतीब में से आपने उनमें से नाउन्स निकाल के अलहदा से लिखने हैं या अंडरलाइन करने हैं। तो इसमें वैसे मैं आपको इसी तरह ही बता देती हूँ। मैन, पॉकेट, इस सेंटेंस में टैक्सी और रोड नाउन्स हैं। नाउन आप जानते हैं ना, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो ये है टैक्सी, मैन, बेंच, बस, ड्राइवर, मनी, अगेन बस आ गया इसके अंदर, और टैक्सी, हाउस। अब हम इसकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। ये उन्होंने कहा है कि टॉक अबाउट हाउ दे कुड आस्क पोलाइटली फॉर व्हाट दे वांट, और कन्वर्सेशन करें पोलाइटली वे में, ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो पहले आपने ये बताना है कि ये डॉरथी है। तो डॉरथी आस्क्ड पोलाइटली टू द ग्रेट हॉर्स काइंडली सेंड मी बैक होम टू कंसास। फिर स्केयरक्रो भी कहता है इसको, ग्रेट हॉर्स को। स्केयरक्रो आस्क्ड या रिक्वेस्टेड द ग्रेट हॉर्स प्लीज गिव मी अ ब्रेन, और ये ग्रेट हॉर्स लिसन्ड देम केयरफुली। और इस पे भी 2 जुमले बोल दें। टोटो नेवर बाइट्स एनीबॉडी, ही वॉज अ फ्रेंडली डॉग। और यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज यूनिट 1 की।